time. It is something that we all have in common. But how we use it, that is where the magic happens. Dear viewers, welcome to the brand new episode of The Progressive Talk. I am Mohammad Jawad Malik, and today I have been joined by a very affable and benevolent senior colleague of mine, Ms. Aruj Fiaz. Aruj, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, Jawad. Thank you for your kind words. अरूज, इंट्रोडक्शन तो मैंने आपका दे दिया है, पूरे डिपार्टमेंट को, पूरी फैकल्टी को पता है, खासकर आपका जो बैच है 8th सेमेस्टर का, अभी फेयरवेल आपका हो जाएगा। तो मुझे आपका बताएं, अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप रहीमिया खान में पैदा हुए, रहीमिया खान के बाद आप यूएसए मूव कर गई 5 सालों के लिए, उसके बाद आप इंडिया भी गई, उसके बाद आप सऊदीया भी गई। आगे कोई और प्लान्स है कि इथोपिया और जर्मनी का भी कोई इरादा है कि वहाँ आप चली जाएं और कर लें कुछ? Definitely. There are plans to move out of this country, obviously, after my graduation. And yeah, this is what encompasses my future ambitions as well. So I do have a plan to move to these countries, either to Europe or to Australian side. अच्छा अरूज, देखें, हम दोनों का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो थोड़ा बहुत सिमिलर मिलता है। सिमिलैरिटी इस हिसाब से मिलती है कि मैं खुद जो हूँ एक कराची में पैदा हुआ, 19 साल कराची में किए मैंने, और उसके बाद मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज वहीं के प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट के कॉलेज से हुआ था। तो मुझे आप ये बताएं कि आप जब यूनिवर्सिटी में आई तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आप ये बताएं कि एज अ वुमेन आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कि स्टार्टिंग में आप ज़्यादा कंफर्टेबल थी, या मतलब कि लोग यहाँ के आपको कैसे लगे, मतलब कि अच्छा आपको इनपुट मिला, क्या मिला? Okay, so I would say कि मेरा यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ईयर था, I think many of the students could relate to me on this, and it was full of curiosity, like for any student, you know, stepping into the undergrad programs. तो उनके लिए, as the word itself suggests, I think we are living in a mini universe that provides you with so many opportunities. और यहाँ यूनिवर्सिटी में आके there is so much to learn and there is a constant greed in you कि what's going to come next. So I think मेरा first year तो ऐसे ही गया था, just finding out that what this life is all about, what it has to provide me. Now moving forward, as we are about to complete our graduation in less than a month now, so I think my experience in the university in a nutshell has been pretty good. There have been so many productive things that we've done here, and there was so much to learn from. We had many mistakes along the way as well, and that also proved, something to learn from. तो what do you think कि अगर आप किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में होती तो आपको यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वो कहीं और मिल सकती थी, कि यहाँ अगर आप कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर कोई ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है तो हमारा तो यही यहाँ से बच्चों का माइंडसेट बना हुआ है कि यार वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, XYZ यूनिवर्सिटी है, वो बहुत अच्छी है और वहाँ का कोर्स आउटलाइन बहुत अच्छा है, उनका कल्चर एक बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, वाइब वहाँ की बहुत अलग है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली? क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो यही एक्सपीरियंस बोलता है कि वहाँ आपको कंपटीशन मिलता है और यहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। So Jawad, I would definitely agree to you on this thing that यहाँ पे हमें opportunities बहुत मिलती हैं, वहाँ पे हमें competition बहुत मिलता है. Because if we look at the environment or the culture of let's say better university than us, क्योंकि every person might not think the same way. They might say for some this university would be so much better than others. And for us, let's say we consider के LUMS का business school हो गया, IBA का मतलब हो गया, these are the best for us. So I would say कि those universities do provide space for competition. That competition really brings in creativity in the students. But don't you think कि एक इंसान की ग्रोथ के लिए या जो एक स्टूडेंट है उसकी ग्रोथ के लिए कंपटीशन और अपॉर्चुनिटीज दोनों बहुत वाइटल हैं? Exactly. Yes, लेकिन कंपटीशन देखें, कंपटीशन अब अगर एक इंसान का अपने साथ हो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कि कम्पीट करना है तो आप उसके साथ कम्पीट करें, उसके साथ कम्पीट करें। कंपटीशन इज ऑलवेज विद यू, ठीक है, और आपने अपने आप को बहुत बेहतर करना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सनल ग्रोथ के लिए।
obviously opportunity भी होना बहुत ज़रूरी है, and then you have to fight with yourself every single day to make yourself better. Again, we're living in a highly competitive world. ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे हमें competition नहीं है यहाँ पे भी you have to face competition. I think almost everywhere, whether it's in the classroom or when you step out of your classroom, you have to face competition. Not just academically, but there are so many challenges which you have to face both socially and even with building your PR or doing other stuff. So there are so many challenges, and you have to fight with yourself. You have to be in a competition with yourself to make yourself better in those things as well. तो फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताएं आप. My first semester. So my first semester, I was basically immersed in academics so much. And if I compare myself now to the first semester, I think that time, it was a time when, one thing, when a student steps into a semester system, as compared to the annual system, so it takes up some time for you to, grasp those things, to manage your time, to manage your resources, and just try to understand what's going on in this semester system. So yeah, I think my first semester was kind of occupied in this thing, that I was trying to understand how I have to, carry this on. तो कोई स्पेसिफिक कोर्स या टीचर जिसको आपकी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट किया? Obviously, I have a very special course and a special teacher as well, and I think the people of my batch who have learned from him would relate to me with this. Like the course of critical thinking by Sir Umar Farooq, that left a huge impact on us. It wasn't just me, it was my whole batch. Like we were compelled to brainstorm. हमारी पैनल डिस्कशंस होती थी, हमारी डिफरेंट टॉपिक्स पे डिबेट्स होती थी, and that is really what brought a change into our classroom. I think viewers भी इस बात से सारे एग्री करेंगे जिन्होंने सर उमर से पढ़ा है. Exactly. कि वो बहुत मतलब बेस्ट बंदे हैं. तो अगर वो एक टर्म इस्तेमाल होती है विरेशियस, वो विरेशियस भी हैं, वो इंटेलिजेंट भी हैं, वो बहुत अच्छे हैं. तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा मतलब कि कोई स्किल आपने यहाँ से सीखी यूनिवर्सिटी से, या चलें अगर एक स्किल होती है जैसा हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सॉफ्ट स्किल्स पढ़ी थी, तो उसके अंदर आप मुझे बताएं कि इन्हेंस की है कोई स्किल? Obviously, spending so much time right here has brought so many things that we had kept in theory to life now. Because spending 4 years or approximately 4 years in this department or in this university, there are so many soft skills that have been enhanced along the way. तो डोंट यू थिंक जो बच्चे हैं वो बच्चे बोलते हैं कि हमें यहाँ से स्किल नहीं मिलती, और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है हर बंदे का, हर बंदा अपने आप को इंडिविजुअली लेके चलता है. फ़र्ज़ करें अगर यहाँ से कोई बच्चा सीखने आएगा तो सीखने आएगा, लेकिन अगर आपने स्किल लिया है तो इसका मतलब दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं. तो इसके बारे में आपका क्या मोटिव है? What I would say is, apart from academics, there are so many skills that the university can तो provide. स्टूडेंट ऐसी कौन सी स्किल डेवलप कर सकता है? A student can develop the skill of socializing. A student can develop the skill of PR development. A student can develop the skill of presentation, confidence building. There is so much to provide you within the classroom and outside the classroom as well. सोसाइटीज़ के बारे में बताएं कि आप खुद भी मेरे ख्याल से 2 साल शायद सोसाइटीज़ Yes, का 2 हिस्सा years, रही 2 हैं. years. तो सोसाइटीज़ ने आपको कितना हेल्प आउट किया और सोसाइटी से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? So yeah, I've been active in the societies for just as you mentioned, for 2 years, and I think that was a turning point for me at a time when I was a student totally immersed in my academics, and then these societies kind of gave me a push to do something else in addition to sticking to those courses or trying to find meanings in them. So how I try to find meanings in them? When I participated in my extracurricular activities via the societies. So we've organized events, we work together in formal and informal settings, which has helped me gain so much, in terms of my... आप बच्चों को क्या बोलेंगे कि सोसाइटीज़ उनको ज्वाइन करनी चाहिए या सोसाइटीज़ उनको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए? I think societies are important for your personal development if you see it from that perspective. But again, it totally depends on you कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं. I think societies आपको ये चीज़ ज़रूर सिखाती है that how you manage different things, because
within let's say if you're working in a society, you have to, मुझे ये शुरू में face करना पड़ा था ये challenge. There was a time when I had to divide my attention between two things. So my academics also needed my हाँ, इसमें attention मैं भी बीच में as हो गया well था। as that work as well. Volunteer work बोले हैं उसको, हम जो भी बोले, तो वहाँ पे I think that what I learned during that time, it was stressful at the moment, और मुझे इतना भी हुआ था कि okay, let me prioritize one thing over the other. So obviously students कहते हैं कि let's prioritize my academics. So that is what I think societies have contributed in my development, that at least I've learned to manage things in a better way. आपको 4 साल पूरे होने वाले हैं और ग्रेजुएट आप हो जाएंगे 1 मंथ के अंदर या होपफुली से भी कम टाइम के अंदर। तो आप क्या समझती हैं कि अगर अरूज फयाज फर्स्ट सेमेस्टर में आई होती तो उससे एक ऐसा, उसको क्या किसी ने एडवाइस किया होता कि ये कर लो तो बस आगे यूनिवर्सिटी लाइफ हलवा है? Yes. So if someone had told Aruj Fayaz that don't rush into believing every single situation that comes in front of you in the first place. You're only seeing the tip of the iceberg. There is a whole story behind, whether it's a situation, whether it's a person. So this is one piece of advice that I wish that before stepping into the अच्छा, university I was इसमें हम थोड़ा इसको ब्रीफ भी लेके जाते हैं। हम ये चीज़ करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे आते हैं, ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं वो उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनको वो किस तरीके से टैकल करें? मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, होता है कि यार ऐसा टीचर मिल जाएगा और ये मसला है, ऐसे पता नहीं क्या होगा, तो वो कैसे इस चीज़ को टैकल करें? So during my travel, I often meet freshers, and I try to just get their feedback of what they're expecting from the university. Freshers, whether from our department or from other departments of the university. So what I came to learn from them is that obviously they have a lot of expectations. Just like you said कि उन्हें ये होता है कि हमें किस तरह के टीचर्स मिलेंगे, किस तरह का कोर्स मिलेगा। तो एक चीज़ जो मुझे कॉमन नज़र आई उसमें ये है कि स्टूडेंट्स हैव अ टफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द सेमेस्टर सिस्टम फर्स्टली। पहले सेमेस्टर में तो आई डोंट थिंक कि एनी स्टूडेंट हैज़ अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो द बेस्ट थिंग टू डील विद दिस इज गो विद द फ्लो। you just try to grasp what's to come next, and you just try to understand what's going on and try to just be yourself. अब मुझे आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस था आपका, उसके अंदर आपके पर्सनल जो आपके करियर गोल्स हैं उसको मतलब किस तरीके से उसको शेप इन किया? ये जो आपकी यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस है उसको किस तरीके से मतलब कि हेल्प आउट किया कि आप जो है जो आपके पर्सनल या करियर गोल्स है उसको आप अचीव करें? So I think I had my long-term plans way before I entered the university. Like I had this in mind that I want to join the civil services. Quite that was my ultimate ambition. It still is. So how the university helped me in that would be, I think, again, in addition to academics, this university has helped me to look into other sides of life as well. Whether it be meeting new people, engaging with them, how you're supposed to engage with different people. So I think it has quite helped me in that thing. And how is that going to contribute to my ambition? It's going to contribute to my ambition in a way that maybe there are some situations of life, or there are some situations around me which I have a better understanding of now. नहीं तो आप क्या समझती हैं कि आज अगर एक यूनिवर्सिटी में बच्चा है और जो हमारे यहाँ मुल्की हालात डायनेमिक्स हैं, जो भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो हर बच्चा मोटिवेटेड है कि वो फ़ॉरेन किसी कंट्री के अंदर मूव आउट हो जाए, तो इसके ऊपर आप मुझे ये बताएं कि वो भी फिर CSS करे या फिर उसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि वो CSS का साल छोड़ के वही साल अपना किसी बाहर की कंट्री में लगा के अपना एक्सपीरियंस बना लें? We as a nation are becoming collectively disappointed. That's the truth. That's a fact that we see all around us. And given the current political situations, even the global situations, we are seeing the current trends के global situations भी हमारे मतलब कैसे हो रही हैं। US की आप situation देख लें, US की universities में you can have a look what's going on. We are seeing the trade war. We are seeing so much competition. Okay, again, within Pakistan,
there are so many challenges that the students are facing, और उनकी first priority यही होती है कि हम किसी भी तरीके से ना either for academics or on job visas हम इस country से बाहर चले जाएं. So if you're finding that a better opportunity, please avail it. I would say that. But लेकिन आप क्या करेंगी? आप ये बोलेंगे कि CSS कर लें, पाकिस्तान को सर्व आउट करें, या तो फिर आप ये बोलेंगे कि यार मेरे ख्याल से बाहर ही मूव आउट करना बेहतर है? क्योंकि ये सवाल एक बहुत जनरल सवाल बन गया हर बच्चे की लाइन के ऊपर, मतलब ये हर बच्चे की ज़बान के ऊपर यही अल्फाज है कि मैंने बाहर मूव करना है. तो अगर उन्होंने बाहर मूव भी करना है तो क्या उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर इन 4 सालों में इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है कि उनके इतने प्लान्स अच्छे बन गए कि मैंने ये कंट्री टारगेट की हुई है और मुझे इसी कंट्री में जाना है और इस कंट्री के अंदर जिस तरीके से एडमिशन लेना वो मेरा काम है, और मैंने फिर उस हिसाब से अपने आप को शेपिंग करना स्टार्ट कर देना है? तो इसके ऊपर आप मुझे बताएं. I think that largely depends on your personal homework. And why am I saying that? Because these 4 years of university give you an ample time to decide exactly where you want to go. See, so as I've said that as far as my ambitions are concerned, like if you're asking the question that whether you should be moving out or you should be serving the country, that also depends on your personal preference, whether you see hope in the current situation of Pakistan or not. See, if you want economic stability, if you want, obviously we all want a better future for us, we all want stability. Ultimately, we all want stability. And for that, if you're finding that if moving abroad can provide you with that, that is a viable option for you. And there would be many students who would still want to serve this country despite the collective disappointment that we have. चलें, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. अब हम एक सेगमेंट की तरफ जाते हैं, हैव आई एवर सेगमेंट के ऊपर. इस सेगमेंट के ऊपर हमने ये किया था कि हमने जो है एक सर्वे लगाया था और उस हिसाब से हमने इनके सवाल बनवा लिए थे उन्हीं कुलीग से जिनसे ये पढ़ती हैं. तो देखते हैं कि इस सेगमेंट्स के अंदर आप किस तरह येस और नो के अंदर आपने जवाब देना है. Okay. कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं. Okay. कभी आपने प्रिटेंड किया है कि आप लेक्चर को अंडरस्टैंड करी हैं और वाकई में नहीं करी होती? Yes. कौन से? Oh, there were many. There were many. Yeah. अच्छा, ये सवाल अब जो दूसरा आया है वो मुझे बच्चों ने भी सवाल किया था Okay. कि अरूज फयाज ठीक है 4/4 3.9 3.8 टॉपर, उसने कभी चीटिंग की है या क्विज के अंदर? No. आज तक नहीं की. I would prefer to leave it if I don't know. आज तक नहीं की. No. कमेंट्स में ज़रूर बताना आपने. कभी किसी को अवॉइड करने के लिए प्रिटेंड किया कि मैं बिजी हूँ? Definitely. किसको किया? Definitely. Oh, many people. Obviously, you have to prioritize नहीं मतलब what you're doing. मैंने मतलब क्या रीज़न थी? Reason. I think it was my work, like what I'm doing. If that is more important than the person that I would. हाँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि अगर आपसे कोई टाइम मांगे तो आप 5-10 मिनट उसको टाइम ज़रूर दे देती हैं. Yeah. लेकिन ये मैंने एक पर्सनल लेवल पे किया कि अगर वाकई होता है ना कभी कभार, भाई इसको तो मैंने अवॉइड ही करना है. Yes. ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ऐसा? हुआ. कितनी बार हुआ है? बहुत बार. I would say yes. कभी टीचर को प्रैंक किया है? No. तुमने कभी तुमने अपनी स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ और I have been a very prude kind of a student, always looking for perfection. इस चीज़ का मुझे नुकसान भी बहुत हुआ. I missed out so much fun. Like I never participated in pranking anything. यार मैंने तो अपने स्कूल में बहुत सारे टीचर्स के साथ हमारे ग्रुप ने प्रैंक किया है. हम लोग कभी जो है टायर की हवा निकाल के भाग जाते थे और कभी टायर पंचर करके चले जाते थे. I sometimes feel that I missed out all that fun, just trying to find academic excellence and perfection in that. आप किसी की लाइफ में विलेन है? मैं किसी की लाइफ में विलन हूँ. I could be. विलेन है? I could be. चलें, कभी आपने होता है ना कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर हम जो है स्टॉकिंग कर रहे होते हैं. स्टॉक नहीं कर रहे होते, एक इन सेंस कि अगर आप उसको स्क्रॉल कर रहे होते हो, ठीक है, तो अगर आप स्टोरीज भी लगाते हो तो जो है वो स्टोरीज के अंदर ही जो है ना वो आ जाता है, रिक्वेस्ट आ जाती है. उसमें अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ जाए, सही है, तो कभी ऐसा हुआ है कि उसको स्टॉक करने के लिए कभी बार गलती से रिक्वेस्ट भी चली गई हो? Yes.
हुआ है, हुआ है ऐसे? हुआ है। And कभी- one thing that Instagram has given this new feature, I don't know how many people have seen that. कौन सा? जहाँ पे आपकी stories appear होती हैं, वहाँ पे आपके suggestions पहले नीचे आया करते थे. Then you have those people that like you can add it. हाँ, Story मेरे पास- देखते हुए मेरे काफी लोगों के पास रिक्वेस्ट चली गई देना है. हाँ, मेरे पास जो है ना ऐसे ही हुआ है। हाँ. और ये मुझे बताएं कि कभी जब पैसे आप खर्च करते, कभी सिली पैसे खर्च किए सिली चीज़ों में? No, I haven't spent on any silly thing, but I think I do overspend sometimes. और किस चीज़ों पे? I like to so there are interests, like basically आप उन्हीं चीज़ों पे spend करते हैं which you are interested in. तो मुझे apparel पे spend करना अच्छा लगता है, and sometimes I think that I overdo it. अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस थे? आप आ गई यूनिवर्सिटी में, आ गई, आपने 8 सेमेस्टर अपने कंप्लीट कर दिए। ऑब्वियसली बात है, हर स्टूडेंट को चैलेंजेस तो फेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है, भले वो पर्सनल लेवल के चैलेंजेस हो या भले वो एकेडमिक रिलेटेड चैलेंजेस हो या कुछ भी। तो आपने जो ये चैलेंजेस फेस किए थे, तो उसको आपने किस तरीके से टैकल किया था? Like any student मुझे और ये मुझे आपको एग्जांपल देंगे, मैंने ये चैलेंज फेस किया था। चलें, यहाँ मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ लेके चला जाता हूँ। लेट्स जस्ट से कि जो बच्चों का सर्वे हमने किया उसके अंदर सारा कुछ सवाल आए, तो उनमें ये बोलते थे कि हम फेवरेटिज्म के शिकार हो जाते हैं, हम बायसनेस, अपना बायसनेस के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, या वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, या ये होता है कि मतलब कि बहुत सारी रीजंस है। ये तो अभी मैंने बहुत चंद आपको नोट डाउन किया है। तो आपने कभी ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं कि जिसकी वजह से आपको लगा कि यार देखिए, क्योंकि माइंडसेट तो इंसान का कहीं ना कहीं शैटर तो ज़रूर हो जाता है कि ये सारी चीज़ें करते करते, क्योंकि मैं हूँ तो मैं भी अगर बैठा हूँ तो मैं ऐसा बोलूँ ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन तो आपके साथ अगर हुआ तो आपने उसको किस तरीके से टैकल किया, और आप यंग या जूनियर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से बोलेंगे कि वो किस तरीके से टैकल करें? राइट। सो मुझे जो प्राइमरी चैलेंज आया था इन द बिगिनिंग, दैट कौन से सेमेस्टर में आया था? सेकंड में? फर्स्ट सेकंड both. I would include both. So that was I was understanding. Obviously, I was getting used to the semester system. One thing, and the second thing was the courses weren't very difficult, but again, I was trying to assess the marking criteria. Right, so I was stuck in a thing that okay, how am I supposed to prepare for a certain thing? बट डोंट यू थिंक कि कोर्सेज आउटलाइन जो है वो हर यूनिवर्सिटीज़ की सेम है? जहाँ तक मैंने भी देखी है वो तकरीबन वही सेम है, वही बुक्स है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि आप जो चेकिंग वाइज है उसको आप यूज टू हो रही थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो है आप लोग मतलब के उसके अंदर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े। दूसरी और क्या चैलेंजेस थे? दूसरा और जो चैलेंज मतलब आप था, तो एज अ वुमेन है, तो आप ये चीज़ बताएं कि आपका एज अ वुमेन कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ इस यूनिवर्सिटी में? So the second challenge that I think still follows me is it belongs to the social realm, and the challenge that I faced is that people here, I mean people everywhere, have different mindsets, and sometimes you just don't find yourself aligning with that. Jawad, you can relate to me on this thing. नहीं, ये देखें, ये चीज़ है कि हर बंदे का अपना ओपिनियन है, Yes, exactly. ठीक है। हाँ, ओपिनियन और फैक्ट में बहुत फ़र्क होता है, जो मैं चीज़ समझता हूँ। यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत कम बंदे होते हैं जो फैक्चुअल बात करते हैं, वरना सारे ओपिनियनेटेड अपना आंसर्स दे रहे होते हैं। लेकिन बात वही है कि जब एक बंदा के दूसरे बंदे के ओपिनियंस नहीं मिलते, तो वो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी तो हर्डल्स बीच में आ जाती हैं, क्योंकि वो नहीं अलाइन कर सकता, उसकी वो वैसी एनर्जी नहीं जाती और वो बिल्कुल साइड पे हो जाता है। So the best thing that I do or did, and still I don't say that I have gained any perfection in this. Obviously, we cannot. ये तो देखिए सीखने का अमल है, obviously, हर दिन आप कितने बंदों से मिलते हैं। So what I do in certain situations is that okay, let's just agree to disagree. It's okay. Disagreeing with someone doesn't give me a reason to dislike them in any way. We can have different opinions, and I think that's the beauty of human society, that we all carry, different ideas. Sometimes those ideas can clash, sometimes they can coincide, and I don't think that gives me any reason to abhor that person in any way. But yeah, sometimes I find contrasting ideas very interesting as well. Okay, this person has a different opinion than me, let's just listen up what this person has to say.
And sometimes it surprises me that there are so many things that come across me maybe that I'm overlooking or that has been shadowed from me. लेकिन आप ये नहीं समझती कि अगर एक बंदा ज़्यादा ओपन हो गया चीज़ों में तो दूसरा बंदा जब उसको ज़्यादा जान लेता है तो फिर वो ज़्यादा उसको अवॉइड करता है, ऐसा है? that again depends कि आप कितना कंसाइड करते हैं या कितना कोलाइड करते हैं अपने आइडियाज में. इफ अगर आपकी कंसेशन ज़्यादा है, राइट, अगर आपके आइडियाज जो हैं you find it aligning on so many points, तो you would want that person to open up to you more. And अगर नहीं है तो आप पहली कॉन्वर्सेशन या दूसरी कॉन्वर्सेशन में you would start avoiding that person. Come on, that's not working with me. अब मुझे आप एक बात बताएं कि आप खुद किताबें बहुत पढ़ती हैं, कोई ऐसी बुक जिससे आप अपने आप को अपनी स्टोरी को रिलेट करना चाहें? Can I say two? हाँ बोल दें. So not और एक ऐसी बुक बता दें जो स्टूडेंट्स को भी हेल्प आउट कर ले. So not necessarily relating to my story, but these are two books that have helped me in looking at life with a different lens. So I read these books back to back, and the first is When Breath Becomes Air by Paul Kalanithi. That book totally shaped my perspective on life. That basically encompasses the life of a neurosurgeon who himself is near his death, and there are so many precious things that he has to leave behind. And the second book, which is most dear to my स्टीफन heart. हॉकिंग की भी ऐसी कोई मूवी आई थी कि स्टीफन हॉकिंग के ऊपर भी मूवी एक बनी हुई है, उसका मुझे नाम नहीं याद, लेकिन बहुत एंड्रू गारफील्ड मेरे ख्याल से उसके अंदर उन्होंने एक्टिंग की हुई थी. तो मेरे ख्याल से वो भी बिल्कुल इसी स्टोरी के रिलेटेड मूवी होगी. So the second book, which is very close to my heart, and that is The Kite Runner by जी, खालिद हुसैन. Khalid Hosseini. That book, literally, I think every reader could agree with me that when you close the last page of that book, there are tears For you, rolling 1,000 times down. over. Yes, Ehsan साहब आपके लिए. for you 1,000 times over. And that book still sticks with me in so many situations, and it is still very dear to me. Like, yeah. So these are the two स्टूडेंट्स books के लिए that I- आप कौन सी बुक? I would say there are so many books that we hear जिनके online suggestions भी हमारे पास आ रहे होते हैं, and we say कि यार एक business grad को तो इन books का पता होना ही चाहिए. So some of these books include आपको Rich Dad Poor Dad आपको पता, आपको Atomic Habits का पता होना चाहिए. ठीक है. So these are some of the Thinking books that Fast yeah, and Slow. Thinking Fast and Slow. So these apart from that, if you want to learn something apart from that about life or anything, I think that every student should read Khalid Hosseini. A student should, and apart from that, if you have an interest in really looking into what's going on in this world and where we are headed or where we were, so I guess Harari को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए. Harari is one of my favorite authors as well. चलें अरूज, हवा में एक आस्क अरूज सेगमेंट कर रहे हैं Definitely. और आपके कुलीग्स ने Yes. सवाल किए I हुए was हैं. waiting for that. सबसे पहला सवाल आया हुआ है अब्दुल रहमान का. Okay. अब्दुल रहमान पूछते हैं कि व्हाट्स वन माइंडसेट और प्रिंसिपल दैट हेल्प्ड यू टू स्टे पॉजिटिव थ्रू आउट यूनिवर्सिटी लाइफ? One principle or mindset. I think one thing that helped me navigate through university life in a better way was that differences are beautiful. If you find differences, whether in person, whether in situations, anything, just don't take it as a reason for dislike. Try to find some meaning in it. We all are different, and I think that's what makes us. पर डोंट यू थिंक इसके अंदर फिर रिस्पेक्ट का फैक्टर भी आ जाता है कहीं ना कहीं कि रिस्पेक्ट एक साइड से है और सेकंड साइड से भी होनी चाहिए? Obviously, I think this is a psychological thing that humans work on reciprocation, and it is very important to understand this thing. अक्सर जो हमारे पास हम social clashes हम face करते हैं, तो वो इसी वजह से आता है that maybe one person is not understanding that relationships require equal efforts, relationships require Absolutely. reciprocation. So I think humans do, even if we reciprocate the facial expressions, there is a psychological trick that if you want to gain someone's attention, just reciprocate their facial expressions. If it can work on such a micro level, think about the macro level and the wonders ऐसा that ही it है. can do.
दूसरा सवाल हमारे पास आया हुआ है तुबा राफी से। तुबा राफी पूछती हैं, व्हाट्स वन लेसन यू लर्नड आउटसाइड द क्लासरूम दैट हैड अ बिगर इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ देन एनीथिंग यू हैव लर्नड इन स्कूल? There are many, but if I am to point out one, that would be open. बी ओपन। Be open. अच्छा, एक और चीज़ मैं ये भी बताऊं कि ओपन माइंडेडनेस भी जो है एक बहुत बड़ी स्किल है। चैलेंज भी है at the same time, जवाब। चैलेंज तो ओपन माइंडेड बंदे के लिए चैलेंज ही चैलेंज है हर जगह, सही है, लेकिन ये है कि वो एक स्किल भी है और बच्चा इस स्किल को बहुत इनहेंस कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो देखें, मेरा एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि अगर एक बंदा है वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा ऑब्वियस सी बात है उसको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। उसको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, उसको अपनी लाइफ के अंदर जो है कुछ स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी कि वो थोड़ा अपने आप को जो है टाइम दे। और अगर एक्सट्रोवर्ट है तो उसके लिए भी यही चीज़ है कि अपने आप को लाइफ के अंदर उसमें उनको जो है स्पेसेस देनी पड़ेंगी, तब जाके जो है वो कहीं ना कहीं उसके लिए आसानी हो सकती है। इस पे मुझे आप बताएं इस सवाल के साथ अलाइन करके। Okay, so aligning with this question, when I said be open, it meant be open to new ideas, right? भाई ये नहीं करना दूसरे बंदों के साथ ओपन होके बैठ जाने वर्क प्लेसेस के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोग। Be open to new ideas, ठीक है? I think one of the biggest things that open-mindedness gives you is that you welcome new ideas. You're not rigid about a particular thing. You look at different angles, and this thing can help you anywhere in life. And I think everywhere in life, not just anywhere. I think everywhere in life, if you're welcome to new ideas, if you're open-minded to them, if you're able to accept things. Accepting criticism is a huge thing that can impact your life. That's where you really test your waters. Where exactly you lie on this thing, because there is constructive criticism and there is some demotivated type of क्रिटिसिज्म अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तो इंसान को ले लेना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें, आज जो क्रिटिसिज्म होता है तो उसके लिए तो मैं यही चीज़ समझता हूँ कि आप उस बंदे से ज़्यादा बेस्ट होते हो जिसकी वजह से आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है। या तो ये या तो वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में की कि आपके ओपिनियंस दोनों के अलाइन नहीं करते ऑन द सेम पेज, तो आप ये करते हो सकता है वो बेहतर हो सकता है कि उसके एक्सपीरियंसेस उसको उस तरीके से लेके जा रहे हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे मेरे तरीके से लेके जा रहे हो। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ है, और रिस्पेक्ट दोनों की है। ऐसा नहीं है कि उनकी आप ना करो कि यार उनके ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है मेरे से, रिस्पेक्ट दोनों की है। बट यहाँ मेरे ख्याल से इंसान को जो है एक बैरियर बना लेना चाहिए कि ठीक है, देखिए मैंने एक बात की, प्रोफेशनलिज्म एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी इंसान को एक बैरियर बना लेना चाहिए कि यार ऑब्वियसली बात है मेरे इस बंदे से ओपिनियंस अगर नहीं मिलता तो आई शुड अवॉइड इट। सो जवाब, लिविंग इन द वेस्ट। अच्छा, एक वेस्ट से आपने बात की, हमारा एक बहुत बड़ा इशू भी है। हम वेस्ट के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन हम वेस्ट की जो है या वेस्टर्न साइड की जो है वो एथिक्स को कुछ हम फॉलो नहीं करते। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। सो हम आइडियलाइज करते हैं वेस्ट को बहुत, राइट? एंड लिविंग इन देयर सोसाइटी एट एन एज वेयर एक बच्चा पिक कर रहा होता है चीज़ें, दैट्स द लर्निंग एज, लाइक 7.5 years of age, ठीक है, and you're absorbing so many things around you. So that society really opened up my mind to so many things. What I saw around me was that people are living in such harmony despite their differences, right? When you're living in a multicultural society, you see people coming from different parts of the world. You see people coming with different personalities and different ideas, different ethics. But that society has prioritized some things. Which applies to everyone regardless of the differences. Yes, it's very welcoming. Plus the element of respect. See, if I'm saying let's agree to disagree, कहना यहाँ पे बहुत आसान है, but doing this actually in our society is a huge thing. If you can really agree to disagree with someone in a peaceful way. So there, the striking difference is that people uphold respect of each other, respect of a human being, respect of their ideas,
despite all of their differences. आखिरी सवाल आया जवाद अहमद साहब का। Okay. जवाद पूछते हैं कि what's the secret behind your peaceful vibe? Okay, so answering Jawad, what's one thing behind my peaceful vibe? I think books have contributed a lot to my peaceful vibe. You know, there was a time when I was finding it difficult to, you know, read different ideas at the same time. जवाद बहुत इंस्पायर्ड है आपसे। This is where my sister came in and she said to me कि Aruj, if you really want something out of reading books, तो आप एक काम करो, आप different ideas को ना एक साथ पढ़ना शुरू कर दो। So it wasn't कि I was reading a single genre at one time. मेरे genres बहुत तब्दील हुए हैं, you know, along the time. I've read fiction, I've read non-fiction, I've read you know, sci-fi, I've read about history, I read about, you know, the current affairs, I've read about, you know, the future of human beings, so many things. And I think that thing has kind of brought an equilibrium in my personality, that okay, there is so much going on around us, and yet we have to be peaceful with that. कोई एक ऐसा वैल्यूएबल लेसन जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सीख लिया? One valuable lesson. और इसको मैं थोड़ा और साथ में कंबाइन कर देता हूँ, या कोई एक ऐसा वैल्यूएबल लेसन जो आपने लोगों के साथ काम करते हुए यूनिवर्सिटी से सीखा हुआ? Oh, working with people is so amazing. Working with people is I think the best thing that one can do, and that again depends on the person, that how you're working with them. So it boosts your energy, it motivates you to do more, and trust me, people are just really lovely. You get to work with them, you get to, even there's a difference in every single thing. If you're in front of me, I'm in front of you, there are so many people around us, let's say, every single person is carrying a different vibe, every single person is carrying a different frequency. And when those frequencies are just, I think, amazing. And that's what I've learned, that I am open to working with people, and I love working with people. अच्छा अरूज, आपको यूथ पार्लियामेंट की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट का भी अवार्ड मिला हुआ है, तो कोई ऐसा मैसेज जो आप यहाँ की वुमेन्स को देना चाहें हमारी यूनिवर्सिटी की? I think women are fantastic. Women can work in every single domain if they really believe in themselves. And girls, believe in yourself, achieve as many things as you can, because the world is equally competitive and you have to make your mark in that. और जितना ही मतलब वुमेन हमारे यहाँ एहसास है इस मुल्क का, शायद कोई और भी हो, क्योंकि ये दोनों इक्वली चलते हैं। Yes. और दोनों जो हैं, I think Jawad, it's a time that our society really understands that we have to work hand अब in चेंज आ hand. जाना चाहिए। Yes. बात अब चेंज आ जाना वही है चाहिए। ना, बात वही है कि वो ये चीज़ बोलते हैं कि वेस्टर्न आपकी एथिक्स और वेस्टर्न मोरल्स और ये सारी चीज़ों को जो है ना, बंदे ट्रेंड्स तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो वहाँ चीज़ें चल रही होती हैं उनको कोई Trends भी सिर्फ वही पकड़ते हैं that aligns with their ideologies. हाँ। Many people could disagree with me on this thing, लेकिन जहाँ पे आपकी ideologies align कर रही हैं, आप उन्हीं trends को पकड़ेंगे, ठीक है? Otherwise you won't. And I think it is high time that our society should adapt to this idea that we have to work hand in hand. Men and women are equally important. अच्छा, ये मेरा एक पर्सनल सवाल है जो कि मैंने रिक्रूटमेंट की और सारा कुछ किया, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन जो मैंने यहाँ चीज़ देखी ना, तो यहाँ की जो फीमेल्स है ना वो बहुत इंट्रोवर्ट है, या मैं ये नहीं बोलूँगा इंट्रोवर्ट है, वो बहुत जो है ना आपकी जो है ना मतलब ओपन नहीं है, रिजर्व्ड है, ओपन नहीं है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? देखें, अगर उन्होंने एक सोसाइटी ज्वाइन किया है या उन्होंने कोई टीम ज्वाइन किया, जाहिर सी बात है उन्होंने आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, तो ये चीज़ इनको यूनिवर्सिटी लाइफ से सीखनी पड़ेगी, ठीक है? वापस वही बात है कि अपने शेल में रह के, मतलब अपने शेल में ही रह के वो इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाए कि चलो पुश ऑन करते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो फिर आप अपनी शेल में रह के नहीं कर सकते. You have to, you know, pull yourself out of it to some extent. And seeing the girls around us, I would definitely agree that the majority of girls are quite reserved. आपको societies में कम active मिलेंगी girls. आपको even और अगर वो active हैं तो वो बहुत highly level पे वो active हैं. And उन्होंने कुछ किया हुआ भी है. And then within the classrooms as well, आप compare कर लें कि
when a teacher asks a question, the boys are more responsive as compared to the girls. They're just so reserved in themselves. तो उसका और reason ये मतलब कि कितने मज़े की बात है जो सवाल किए हुए हैं ये इसमें से वो आस अरूज वाला सेगमेंट था उसमें बहुत सारे सवाल जो फीमेल्स ने किए मेरे माइंड में भी नहीं आए हुए थे females are. तो I आप think ये चीज़ देख yes, लें female minds are brilliant if you really want to go into the creativity. And their minds are really creative. So, जवाब एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी environment का भी. Where we are sitting right now, right, the area of South Punjab, it hasn't, gained as prominence or as much opportunities as compared to the, the more developed cities of Punjab अच्छा or Pakistan. ये चीज़ मैंने भी यहाँ के नोटिस की है कि यहाँ जो है ना बंदा एक्सेल कर सकता है ऐसा नहीं है कि बंदा कहीं एक्सेल नहीं कर सकता बंदा अपने मतलब काम करके हार्डवर्क करके रास्ते निकाल के बंदा कहीं भी एक्सेल कर जाएगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कराची बहुत ओपन माइंडेड सिटी है आपको वहाँ हर बंदे आपको मिलेंगे diversity. ठीक है हर बंदे आपको वहाँ मिलेंगे और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है एज कम्पेरेटिव टू अगर हम साउथ पंजाब की बात करें See, जवाद, if you look at even the global level, आपके जितनी भी लिबरल सोसाइटीज हैं वहाँ पे बेशक आपके कल्चरल डिफरेंसेस आ जाएं वहाँ पे बेशक आपके रेस के डिफरेंसेस आ जाएं बट दैट डजंट मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट बिकॉज द पीपल आर मोर इन्वेस्टेड इन बीइंग प्रोडक्टिव उनके पास जो टाइम है दे आर यूजिंग इट टू रन द रेस instead of crying over the spilt milk or just spending your time doing almost nothing. So I think ये एक contrasting difference है between the people of the more developed cities क्योंकि उनका जो time है that is mostly going into productive things whether it's productive talks whether it's a productive work तो वो नहीं है they respect each other's time they respect each other's productivity even when they meet ठीक है so that is also productive उनकी discussions हो रही होती हैं उनकी debates हो रही होती हैं so this is the major difference हाँ ये चीज़ है ये मैं यहाँ बहुत मिस करता हूँ खासकर यूनिवर्सिटीज़ में कि यहाँ मन नहीं होते yes यहाँ मेरे ख्याल से मन होने चाहिए और अगर कोई एक हाई लेवल का मन हो गया यहाँ तो मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि एक बच्चे को खुद नहीं पता होता कि वो कितना केपेबल बंदा है वो जब तक अपने आप को शेल से वो बाहर ना निकाले वही बात है ठीक है अब अंदर से भी आवाज़ आती रहती है तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ कुछ ऐसे आप ये समझ लें कि कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएं वाकई अगर मैं स्पेसिफिकली साउथ पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं नहीं बात कर रहा कराची की या लाहौर वाली साइड की या फेडरल एरिया की मैं खाली साउथ अगर यहाँ कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएं और उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलके कुछ ना कुछ इवेंट्स करवा दे तो मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो अच्छा खासा एक्सेल कर दिस यूनिवर्सिटी इज आल्सो फुल ऑफ सो मेनी ब्रिलियंट माइंड्स लेकिन अगेन वही है कि इंसेंटिव कम है यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि माइंड्स हैं बहुत अच्छे यार तुम्हें पता है मज़े का सीन क्या है मज़े का सीन ये था कि जब मैंने रिक्रूटमेंट की थी ना तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो वाकई बहुत अच्छे हैं ठीक है लेकिन सारी बात यही है कि वो नहीं आते सामने वो अपने काम से काम रखते हैं और उनको ये बेहतर लगता है कि हम अपने काम से काम रखें और या तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि वो अपने आप को उसी शेल में रखते हैं बोलते हैं यार बस जैसे चल रहा है उसको चलने दो तो ये चीज़ वाकई है कि लैक ऑफ इंसेंटिव बच्चे जो है ना वो कर जाते हैं और ये मैंने इधर भी देखा है हमारे जब यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है कि अगर हम उनको बोले भी सही कि आप आ जाओ या आ जाएं तो वो बोलते हैं नहीं आप अंडर टेबल काम कर रहे हैं अंडर टेबल से मुराद के मतलब कि बस मैं काम दे दूंगी लेकिन मैं कैमरा के सामने नहीं आऊंगी ये सारी चीजें प्रोमिनेंस नहीं चाहिए हाँ they just want to work behind the curtain मेरा तो फर्स्ट इंटरेक्शन आपके साथ बहुत ही बुरा था मतलब इन अ सेंस बता देना चाहिए यहाँ Oh, I did get to hear some words from you, from someone else. Yeah, you mentioned that I think mentioned me before them. So that's मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था वो बहुत ही कोई एक अजीब तो नहीं बोलूँगा लेकिन वो इंटरेक्शन ऐसा हो गया था कि मैंने बोला अच्छा भाई सही है ओके हो गया यही है
Yeah, so yeah, I would like to mention this कि Jawad saw my presentation and then he wanted to see me and there was a huge difference in that. अच्छा, मैंने प्रेजेंटेशन आपकी भी देखी और फिर मैंने नाफे की भी देखी, और मैंने भी जवाद को वाकई बोला, मैंने बोला है कि जवाद ने बोला नहीं नहीं यार, इस बंदी के साथ कभी भी बैठ के जो है ना आप वो नहीं कर सकते। मैंने आप मुझे चांस तो देने दे, फिर देखते हैं होता क्या है। So how did it go? सही है। तो कैसा लग रहा है आज जवाद मलिक के सामने आपको इंटरव्यू देते हुए? जवाद मलिक के सामने इंटरव्यू देते हुए बहुत अच्छा लगा and yes, it was really a good experience. Yeah, truly. और ये Something different Jawad Malik is doing. I would really appreciate this thing that he has taken up this initiative, which no one else has done in the department. So it was a pleasure to be the first one to speak on your podcast. जाते जाते कोई ऐसी बात जो आप स्टूडेंट्स को बोलें या वो करें? जाते जाते स्टूडेंट्स को एक बात बोलूँगी that there is more to university life than the course outlines. Go out there, explore. मैं खासकर स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा जो मेरे जूनियर्स हैं कि बिलीव रखें अपने आप में, गोल्स बना लें और बाकी सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। एफर्ट्स करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपका माइंड क्लियर होता है ना कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है, तो मुझे लगता है कि हो जाता है, उसमें अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। Exactly. थैंक यू सो मच अरूज, आपने टाइम निकाला और आप पहली गेस्ट बनी दी प्रोग्रेसिव टॉक की। आई होप सो कि बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उनको लाइफ में जहाँ जहाँ वो मुश्किलात फेस करें वो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर सीखेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा जो पॉडकास्ट था ये आज यहाँ एंड हो रहा है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।